Sitting is the new smoking. This phrase is Yeah, getting viral everywhere. What is it all about? Like, sitting is the new smoking, and how it has become the new trend. you're right. Sitting is a new smoking because we all know this. Smoking can be reason for diabetes, heart diseases, and back pain, joints pain. You can say sitting is just like junk food and smoking. Sitting means there are lack of blood flow in your body. If you're going for a long sitting, then definitely the blood flow is going to decrease. Directly connected to your heart problem, cardiac problem, joints pain, stress problem, lack of flexibility. Thank you for taking out time, Dr. Chandresh Arora. And I know you are a very busy person as you have been working as ortho, neuro, and sports injury specialist. Thank you for taking out time, sir. Thank you. So, my first question to you is, Dr. Chandresh, like, sitting is the new smoking. This phrase is Yeah, getting viral everywhere. What is it all about? Like, sitting is the new smoking, and how it has become the new trend. you're right. Sitting is a new smoking because just like smoking, because we all know this smoking can be reason for diabetes, heart diseases, and back pain, joints pain. Same like you can say sitting is just like junk food and smoking. If you're going for a long sitting, then it can hurt your back, and, uh, and you can suffer from heart diseases. Okay, and sitting means there are lack of blood flow in your body. If you're going for a long sitting, then definitely the blood flow is going to decrease. Okay, and it can directly connected to your heart problem, cardiac problem. And Okay. if cardiac problem is suffer and you are meet with cardiac problem, then there are lots of problems Yes. coming like joints pain, stress problem, uh, lack of flexibility. Okay, and just like smoking, you are not going to see the results just now. Okay, after a long time and after some years, you are going to see the results and the reasons. सर तो मुझे बताइए कि अगर अवॉइड करना है लाइक इफ वी वांट टू अवॉइड दैट लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉन्ग सिटिंग तो ऐसी क्या तीन चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए बिकॉज आजकल देख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम है तो भी 8-9 घंटे का एक स्ट्रेच That's why I'm just going to say you because it's not possible for in today's world कि हम long sitting को avoid करें. It's because work from home हम कर रहे हैं in classroom, in school, in college, in university. There are lots of lecture for 2 hours, 3 hours regularly. Okay, even for me, I'm a doctor and I'm going to sit in my seat. Then it's not possible for me कि after 15 minutes I'm going to walk and after 20 minutes I'm going to walk. यस 3 से 4 घंटा कम से कम मुझे बैठना पड़ेगा. जी ठीक है, इसके लिए हम बहुत सिंपल चीजें कर सकते हैं कि हम अपने पोस्चर को ठीक रखें. लाइक अगर मैं ऐसे बैठूं इसकी जगह में थोड़ा ऐसा बैठूं. जी ओके, एंड ऐसा इट्स नॉट नेसेसरी कि आफ्टर अ लॉन्ग सिटिंग यू हैव टू स्टैंड एंड गो फॉर अ वॉक. जी On your chair you can stretch yourself ओके like this, like this. Rotate your shoulders, okay? Rotate your neck like this. Lots of exercises you can do on your chairs also, na? But I'm just going to tell you again. Make it in your habit कि after 25 to 30 minutes you have to stand and walk for 2 minutes, for 1 minute, and then again sit back. अच्छा स्पॉट वॉकिंग भी Otherwise you're going to जैसे जैसे स्पॉट वॉकिंग है जहां आप खड़े हैं वहीं पे भी आप चल के उस चीज को रेगुलेट कर सकते हैं कर सकते हैं like I'm here, okay, I'm here, but I'm going to do now like this, like स्ट्रेच this, like this. I can do this. My legs like this. स्ट्रेचिंग Okay, look, and and continue with the water. Just keep hydrated. Keep your body hydrated. If you're going for a long sitting, it's now it's a fact. If you are going for a long sitting, your body is going to dehydrate because there's no any movements. Your जी body is going to use your body energy. जब लॉन्ग सिटिंग रहता है और आप बहुत स्ट्रेसफुल वर्क जोन में रहते हैं तो डाइट का क्या रोल रहता है और क्या Yes. चीजें हैं जो हमें डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए फॉर पीपल हु आर वर्किंग First of all, yes. It's a very good question. If your lifestyle is like this, कि there is no any option कि आपको long sitting देना ही है, so just go for some healthy diet. Like avoid junk foods first of all, oily foods avoid.
बिकॉज यूर ऑलरेडी लॉन्ग, आप ऑलरेडी एक लॉन्ग सीटिंग पे हैं, आप बहुत देर तक बैठे हैं, आप अपनी कैलोरीज को बर्न नहीं कर रहे हैं, और जी ऊपर से आप अधिक कैलोरीज और इंटेक कर रहे हैं, तो इट कैन जी डबल हार्मफुल ना। तो जी आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स आप रखें अपने पास में, एंड अवॉइड जंक फूड्स, ऑयली फूड्स, एंड ट्राई करें कि लाइक विटामिन सी, मैग्नीशियम, एंड कुछ भी वो चीजें जो आप डेली रूटीन में यूज करते हैं, होममेड, होममेड, मैं मार्केट से नहीं बोल रहा हूँ, लाइक आप बनाना यूज कर सकते हैं, इसी जी बनाना इज ए वेरी गुड फ्रूट नो, इजी टू डाइजेस्ट, और आराम से आप कैरी कर सकते हैं, आप लीजिए। आप लाइक कैरेट्स जैसे आ रहे हैं आजकल, आप वो यूज कर सकते हैं। पानी की बोतल हमेशा पास रखें, जरूरी नहीं है कि आपको प्यास लग रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पानी पीना है, नहीं, आप एक हैबिट में लाइए कि आप हर 1 घंटे में, आधे घंटे में आपको थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है। अगर आपकी बॉडी प्रॉपर हाइड्रेट है, और अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी है जो जस्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग सिटिंग अकर हो सकती हैं, वो नहीं हो पाएंगी। बिकॉज लॉन्ग सिटिंग आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम करता है, जी स्टिफनेस को बढ़ाता है, और लॉन्ग सिटिंग के बाद आपकी लोअर बैक मसल्स, हिप बोन की मसल्स, और थाइज की मसल्स मैक्सिमम अफेक्ट होती हैं। थाइज में भी फ्लेक्सर्स मसल्स होती हैं, हिप में जी फ्लेक्सर्स मसल्स होती हैं, तो मैक्सिमम टाइम अफेक्ट होती हैं लॉन्ग सिटिंग के बाद। आपने कभी गौर किया होगा, आफ्टर लॉन्ग सिटिंग बहुत लोग जब उठते हैं तो अपनी कमर को हाथ लगाते हैं, पहले जी 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 सीधा करते हैं, जी प्रेस करते हैं कि जरा, बहुत रीजन क्या है, आपकी स्पेसिफिक मसल्स ग्रुप पे आपने बहुत टाइम तक लोड दे दिया, और वो मसल्स स्टिफ हो गई, सोर हो गई। आप उसको दो ही तरीके से आप सही कर सकते हैं, या तो लॉन्ग सिटिंग को अवॉइड करें आप, या हाइड्रेट करें बॉडी को, और हल्का हल्का स्ट्रेच करते रहे, ओके है ना। और मैग्नीशियम सोर्स, मैग्नीशियम, विटामिन डी, कैल्शियम बहुत अच्छा एक मल्टीविटामिन है जो आप ले सकते हैं होममेड फूड से। मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल है, मैं आपको बता रहा हूँ, विटामिन B12 एंड मैग्नीशियम रिच फूड आप लेंगे तो मसल्स रिलैक्स रहेंगे, मसल्स को रिलैक्स करने में मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल है। मैग्नीशियम के क्या क्या फ्रूट्स और फूड हैं जो घर में इजीली अवेलेबल होते हैं, जो हम रूटीन डाइट में ले सकते आप हैं? कोकोनट वाटर लीजिए, जी बनाना लीजिए, आप जी। नट्स यूज कर ही लेना मार्केट से, नट्स आप डेली रात को भिगोए सुबह लीजिए। टीन एज बॉयज या बिलो अडल्ट जो होते हैं बच्चे, किस तरह की इंजरीज लेके आ सकते हैं जो प्रिवेंटिव होती हैं, जो घर में प्रिवेंट की जा सकती हैं, बट ड्यू टू अनअवेयरनेस वो इंजरी हो जाती है? बहुत, देयर लॉट्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज आज के टाइम में मुझे, जो बेसिकली किड्स लेके आते हैं, टीनेज लेके आते हैं। एंकल स्प्रेन मैक्सिमम, एंकल स्ट्रेन, ओके। शोल्डर डिसलोकेशन, ओके, शोल्डर। नी इंजरीज, ओके। लोअर बैक इंजरीज, बिकॉज दे डोंट नो, दे नो प्ले, बट दे डोंट नो कि आपको गेम खेलने से पहले वार्म अप प्रॉपर बॉडी में करना है, दे डोंट नो अबाउट बायोमैकेनिक्स, एंड देयर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ स्टाइल में, या किड्स जो जानते हैं वो सोचते हैं कि जस्ट बिफोर गेम हमें वार्म अप करना है, बॉडी को स्ट्रेच करना है, बट आफ्टर गेम सीधा घर जा रहे हैं, नो। आफ्टर गेम कूल डाउन करना एंड रीस्ट्रेच करना बॉडी को उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि आपने गेम से पहले किया। प्री एंड पोस्ट दोनों पर इक्वल है। और मैक्सिमम आज के टाइम में क्या है, वी आर गोइंग टू पुश आवर चिल्ड्रन टू प्ले हार्ड गेम, टू प्ले हार्ड गेम। नो नो, इट्स नॉट नेसेसरी कि यू आर गोइंग टू प्ले हार्ड गेम। इफ यू आर गोइंग टू प्ले द गेम इन ए प्रॉपर बैलेंस, proper posture is good. There's no injury if you're going to use your proper posture. Like simple an example, if children is going to play cricket, if daily he is going to play cricket, it means what he's going to do? He is going to do use the same muscles group every day. यस यस। Okay, the muscles group, the helping to ball or helping the shots. He or she is going to use same muscles group in every day. But suddenly, after some time, if she or he is going to participate in other games like running or swimming, then there maximum chance to injure him, because she or he is going to use the muscles group of swimming first time. यस Even he is a player. यस Okay, he's not going to use rotator muscles. Okay, यस। there's no use of the rotator muscles in cricket basically. जी तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ हर बच्चे को कि आप एक गेम की तरफ जाएं, बट एक ही गेम को डेली ना खेलें, आप अपने गेम्स को चेंज करते रहें, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी आप वॉलीबॉल खेलिए, कभी बास्केटबॉल खेलिए, ताकि आपकी बॉडी की सारी मसल्स ग्रुप एक्टिव रहें इन
फ्यूचर में कभी भी आपको इंजरी ना हो, बिकॉज प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम क्या मानते हैं कि डोंट गो फॉर वेट। आप वेट मत करिए कि मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। आप पहले अपने आप को प्रिवेंट करके रखिए कि ऐसे इन फ्यूचर मेरी बॉडी में इंजरी ना हो, तो मुझे पहले से ही अपने नेक मसल से लेकर अपने टो मसल्स तक की सारी मसल्स को डेली टाइम टू टाइम स्ट्रेंथ भी करना है और स्ट्रेच भी करना है। और पोस्चर का ध्यान रखते नहीं है बच्चे आजकल की, लाइक लॉन्ग सिटिंग बैठे हैं और मोबाइल पे, टैब पे, लैपटॉप पे बैठे हैं, एंड यू नो मैक्सिमम टाइम वो लॉन्ग आवर्स उनका जो हेड डाउन डाउन साइड में रहता है। जी जी तो इट मीन्स राउंडेड शोल्डर्स, naturals is common problem for children's round and shoulder, neck pain. And if the muscles of neck is going to stretch, definitely it's going to stretch your back muscles also, which is connected जी like this. It means back muscles are going to involve, and if back muscles going to involve in your body, then your core muscles is going, your balance is gone. जी It means long sitting, poor posture, and lack of knowledge. Like they don't know about posture, they don't know about biomechanics. Even most problem is this, मैं जो आजकल देख रहा हूँ, they are not going to use good equipments in sports ना, like they are going to use any type of shoes, जो मन में आया शूज पहन लिया, जैसे मन में आया कुछ भी यूज कर लिया। नो, इफ यू आर गोइंग टू प्ले, देन अपना टाइम और थोड़ा पैसा उन चीजों पे खर्च करिए जो आपको उस वक्त हेल्प करती है ग्राउंड में भागने के लिए, दौड़ने के लिए। इफ आई एम हैविंग ए गुड क्वालिटी ऑफ शूज, देन बहुत कम चांस है मेरे एंकल में स्प्रेन होने के, तो मुझे एक सॉफ्ट कुशन पीछे से मिलेगा। जी ओके, तो और इवन आपकी सरफेस कैसी है खेलने की, आप कहाँ पे खेल रहे हैं, आपका अनइवन सरफेस है या हार्ड सरफेस है, इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। और अगर हम इनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम हाइड्रेट नहीं कर रहे हैं बॉडी को, हम खेल रहे हैं और बॉडी में, वही दोबारा से बोल रहा हूँ, हाइड्रेशन नहीं है, तो आपको स्प्रेन आने के, स्पाज्म होने के चांसेस 100% है। क्योंकि आप खेलेंगे तो आपकी बॉडी से पसीना निकलता है बाहर, बिल्कुल आप अपने आप को डिहाइड्रेट कर रहे हैं बिल्कुल और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है पानी की, जी। आप उसको नहीं ले रहे हैं, तो बॉडी आपकी मसल्स को इंजर्ड कर देगी खुद ही। Hello, parents. If you find our podcast relatable, educational, then do subscribe to our channel. In the comment box, write your parenting challenges. We'll try to address them one by one. And never forget to share it with amazing parents like you. Because remember, by learning together, we can raise kind, confident, and connected children for happy families and happy nations.